Once again, good morning. Am I audible to all? Aarti ma'am, can you please confirm? Am I जी मैम, audible? you are audible. Yes मैम, you are Thank you, audible. ma'am. So once again, thank you, Aarti ma'am. So once again, a new dear participants. Today we are on our third day. Yesterday we covered our criteria 1 and today we are going to start with the criteria 2. And for today's we have our resource person Dr. Rajinder from Guru Nanak Khalsa College. So he is going to join us.
Hello, am I audible? Yes, ma'am, you are audible. यस, एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी भैया सर की तरफ से कनेक्शन में हो रही है कि आपको उनकी आवाज नहीं आ रही है. वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व इट विद इन 2 or 3 minutes. You going to We are really sorry for the inconvenience of the participants, but this is the benefit of the technology कि हम सब अपने घर पे हैं, अपने जॉब प्लेस बैठे और इसके बाद में भी we are connected with each other. But this is also the drawback of the technology and network कि कई बार हम इसको चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते. So we are trying to resolve the problem, and as soon as possible we are going to start this program. Uh, Good morning, Vibha ma'am. We have our today's resource person, Dr. Rajinder Singh Walia with us. So you kindly start with today's session. Vibha ma'am, over to you. Uh, क्यों आती Vibha ma'am मैम? is connecting. Okay. जी.
Once again, a new, fresh, and good morning to all of us. And especially, I welcome Rajinder Singh Walia sir, who is our resource person for this special day. This is the third day of our FTP, and sir is going to touch deeply the topic criteria too. Sir, sincerely, I welcome you. In this FTP, I also welcome the convener of this FTP, Dr. Neena Goyal ma'am, HOD of Chemistry Department, and Dr. Aarti ma'am from the Department of Computer Science. So I invite Walia sir, please come and share your thoughts about and ideas, new ideas about criteria too. Valia sir, we are not able to hear you. Okay, okay. Can you hear me now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine, fine, fine. So I I welcome all the participants, organizers, and faculty of all the colleges who have joined this very important session on criteria 2 of NAC, learning and evaluation. These are the core activities that we as teachers perform and students as learners perform. And NAC has given the maximum weightage of 350 marks to this criteria. And we will go through this criteria one by one and try to understand what are we supposed to do with each point. So without wasting time, I will point wise, I'll let you through the criteria. Can you see the 2.11? Hello? Hello? Yes, sir, we are able to see you. Yes, sir, we are able to see your screen. Can you see my screen 2.11? Teaching, learning, evaluation. Yes, sir. We are able to see it. Okay, fine. Please ensure that we are on the same page. Okay. So the first point is average enrollment percentage, average of last 5 years, number of students admitted year-wise for the last 5 years, and number of sanctioned seats. Now, this is the point we have to understand. What are these sanctioned seats? These are seats allotted to our college, subject wise and program wise. Understand the program means how many seats have been allotted to us in BA. BA is one program, and uh, subjects like political science, history, these are called courses. So we have to understand the distinction between programs and courses. Similarly, BSc is a course, BSc Computer Science is a course, and it will have 4 to 5 courses. No, BSc Computer Science it will have 4 to 5 courses, which we call papers. So sanction seats means per program. For example, for a BA program, our college has 400 seats sanctioned by the university. So what you have to do is you have to procure, you have to get
a document from the university that your college has been sanctioned these many seats per course. Like in BA program, you have been given 400 seats. For BCom program, you have been given 360 seats, and so on. Okay. So this data we have to give for the last 5 years. Okay. And then the next question, 2.1.2. Here you have to give the average percentage of seats filled against seats reserved for various categories like SC, ST, BCs, OBCs. But since we are a minority institution, both the colleges, we are minority institutions. So what we have to do is we have to go to uh, this template which is given. This template, just a moment. Yeah. So here you have, this others. You may fill in how many ST, OBCs, and general candidates are there, but our focus will be here as per the minority institutions guidelines. How many? What is the reservation policy there? How many candidates belonging to minority communities have been admitted? So we have to indicate the number here uh, at others. And this is one thing. The other thing will be you have also to submit uh, the certificate from the Minority Commission of India that you are a minority institution. So these documents, this template, the entire table, and along with certificate from Minority Commission of India, or from, if it has got the minority status from Minority Commission of India, then you'll attach that. Otherwise, if you are in a government, you'll attach that. So without certificate, you you won't get the credit here. And then I think this is clear. Okay. And then the next point is 2.2, catering to student diversity. Okay. And under that, you have 2.1, institution assesses the learning levels of students and organizes special program for advanced. Now, so this is for 30 marks. You're supposed to, this is a qualitative metric, and you are supposed to write 500 words. How do you do that? But when ये जो आप करेंगे, इसको आप सब्सटेंशिएट करना होगा, जस्टिफाई करना होगा 500 वर्ड की स्टोरी को, उसमें आप लिंक्स लगाएंगे। वो कौन कौन से लिंक्स होंगे देखिए। पहला तो ये है कि आपने करना कैसे है इसको, लेवल्स को असेस कैसे करना है। एक तो तरीका है कि पुराने जो प्रीवियस क्लासेस में जो बच्चों की परसेंटेज है उसके बेसिस पे, और दूसरा जो है वो अपने सब्जेक्ट वाइज उनको डायग्नोस्टिक टेस्ट देने हैं, यानी ऐसे टेस्ट देने हैं जिसमें लो लेवल के भी क्वेश्चंस हो, मिड लेवल के क्वेश्चंस हो, और थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हो। तो उन टेस्ट का आपने जो रिजल्ट्स है वो एनालाइज करना है। ये 3 कैटेगरीज के बच्चे आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है। तो इसमें जो लिंक लगेगा आपका, लिंक में जो लिंक का मैं कह रहा हूं, ये डाटा आप वेबसाइट पे अपलोड करेंगे और उसका लिंक आप यहाँ पे लिखेंगे। ये जब आप एसएसआर भरेंगे उसमें आपको प्रॉपर जगह मिलेगी, वहां पे आप लिंक इंसर्ट करेंगे। तो ये 500, इसको हर कहानी को हमने जस्टिफाई करना। ये जो 500 वर्ड्स वाला है, जितने भी हैं, इनको हम कहते हैं क्वालिटेटिव मीट्रिक। तो इसमें वी आर सपोज टू राइट अ स्टोरी
हाउ डू वी गो अबाउट इट, कैसे हम काम करते हैं। लेकिन सिर्फ स्टोरी स्टैंड अलोन बेसिस पे वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उसके साथ हमें जस्टिफाई करने के लिए एज ए प्रूफ कुछ देना होगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये है कि स्पेशल क्लासेस के बच्चों, जो हमारे लोअर लेवल के बच्चे हैं या ब्राइट बच्चे, उनको कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, ये तो हमने कर लिया कि डायग्नोस्टिक टेस्ट देते हैं, पुरानी परसेंटेज को कवर करते हैं। ये दो तरीके हो गए। अब जो है, इनके लिए स्पेशल प्रोग्राम्स, क्या क्या स्पेशल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। अब इसमें जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल क्लासेस एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक, 2 बार। जो बच्चे हमने सब्जेक्ट वाइज, जैसे इकोनॉमिक्स में हमने मान लीजिए 22 बच्चे हमने वीक आइडेंटिफाई किए, तो उनकी हफ्ते में 2 बार क्लासेस या एक्स्ट्रा ट्यूटोरियल्स लगने चाहिए, और उनका रिकॉर्ड आपने अपलोड करना है वेबसाइट पे, उसका लिंक देना है। सिमिलरली जो वीक बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल नोट्स अगर आपने बनाए हैं, उनको दिए हैं, वो भी, उसका भी एक कंसोलिडेटेड लिस्ट बना के उसका लिंक में डाल सकते हैं। उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप एक ब्राइट स्टूडेंट्स काउंसिल बनाइए, एसोसिएशन बनाइए, जहां पे इन ब्राइट बच्चों को एक्स्ट्रा मोटिवेट किया जाए, उनको नोट्स दिए जाए, इनपुट्स दिए जाए, ताकि दे एक्सेल इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस। और जो ब्राइट बच्चे हैं इनको थोड़ी कुछ हमें प्रिविलेजेस भी देनी पड़ेंगी, कुछ इनको हमें बताना भी पड़ेगा कि सो दैट इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करिए, करिकुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा करिकुलर। इनको लाइब्रेरी से स्पेशल किताबें दिलाइए, इनको कंसेशन मतलब स्कॉलरशिप से प्रमोट करिए, सो दैट दे स्टे मोटिवेटेड एंड दे फिगर इन द यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट। ये जो आप 200 बच्चे, 100 200 जितने भी हैं, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। इनके भी आइडेंटिफाई का तरीका वही डायग्नोस्टिक टेस्ट, उसमें जो हाई लेवल के कैंडिडेट हैं वो आपके एडवांस लर्नर्स गिने जाएंगे। ये हमने काम करना है। दिस इज 30 मार्क्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आफ्टर दैट यू हैव, अब बात समझ रहे हैं ना कि जो भी हम क्लेम करें, जो भी रिकॉर्ड पैदा करें, उसका लिंक हमने एसएसआर में देना है और उसको अपलोड हमने अपनी वेबसाइट पे करना है कॉलेज की। अब उसके बाद हम आते हैं स्टूडेंट फुल टाइम टीचर रेशो। अब ये क्या है? फुल टाइम टीचर्स वो होते हैं जो पूरा वर्कलोड लेते हैं, यानी पार्ट टाइम टीचर्स जो 2 पीरियड लेते हैं, फुल टाइम टीचर्स जो 4 या इससे ज्यादा वर्कलोड लेते हैं, दे आर कॉल्ड फुल टाइम टीचर्स। तो इसमें चाहे हम उनको एडहॉक कहें, चाहे ऐसे टीचर्स को हम टेम्परेरी टीचर्स कहें, लेकिन whoever इज टेकिंग 4 full periods, वो 4 क्लासेस पर डे ले रहे हैं, तो वो फुल टाइम टीचर ही गिने जाएंगे। तो बस इसमें टोटल हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ टीचर्स, फुल टाइम टीचर्स कितने हैं, और उसको हमने वहां से परसेंटेज निकाल लेनी है कि पर स्टूडेंट, पर टीचर कितने स्टूडेंट्स हैं, वो रेशो हमारी निकल के आ जाएगी। मान लीजिए 3000। हाँ जी, हाँ जी। May I ask one question? यस। In our college, we relieve our teachers within 2 or 3 months. So she takes the full load. वो कोई डजंट मैटर, Doesn't matter. Okay. चाहे उसको अगर आपके रोल महीने के लिए भी है, कोई बात नहीं। अच्छा, चाहे वो 8 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, वो सारे फुल टाइम टीचर्स ही। ठीक है। क्योंकि मैंने सुना था कि 10 एटलीस्ट शी शुड वर्क फॉर एटलीस्ट 10 months. Only then they can count her as a full teacher. नहीं मैडम, फुल टाइम टीचर्स तो वो है ही है जो पीरियड, जो वर्कलोड से रिलेटेड है ये। बाकी ड्यूरेशन वाला जो होता है ना, जो हमारा टीचिंग सेशन है, उसमें पूरा होना
उसमें टीचिंग सेशन से पहले, जैसे यूनिवर्सिटी का टीचिंग सेशन होता है ना, हाँ जी। तो अच्छा, टीचिंग उसमें सेशन, उससे पहले रिलीज नहीं होना चाहिए हाँ टीचिंग सेशन उसके के दौरान। हाँ बस छुट्टियों में रिलीव कर दीजिए, जहां मर्जी आप एग्जाम के दौरान रिलीव कर दीजिए, लेकिन जो हमारी टीचिंग टर्म्स होती हैं एज पर द यूनिवर्सिटी कैलेंडर, उससे पहले नहीं होना चाहिए। ओके, सो दे आर फुल टाइम टीचर्स। ये कंफ्यूजन था क्योंकि मैंने हाँ सुना था कि कम से कम साल में नॉट अगर 12 महीने नहीं तो कम से कम 10 महीने तो टीचर को कंटिन्यूस उसका काम होना चाहिए, उसको रिलीव नहीं नहीं, करना होगा बीच में। ऐसा कुछ स्पेसिफिकली है नहीं। ठीक है, हाँ जी। थैंक यू सर, थैंक यू। उसके बाद है मैम, ये जो है, ये हम 2.3.1 पे आते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड्स, अब ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, समझने वाली है। लाइक एक्सपीरियंशियल लर्निंग करवाते हैं, हम पार्टिसिपेटिव लर्निंग करवाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथडोलॉजीज अपनाते हैं। ये भी 500 वर्ड में लिखना तो है। क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड व्हाट डू वी मीन बाय पार्टिसिपेटिव लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथडोलॉजी, तो इसमें थोड़ी क्लैरिटी होना जरूरी है। देखिए, नॉर्मली व्हाट वी डू इज वी यूज चॉक एंड टॉक मेथड, ठीक है, लेक्चर मेथड। तो लेक्चर मेथड इज हाईली टीचर सेंट्रिक। वो टीचर ही 40 मिनट बोलता रहता है, और उसमें बच्चे कितना समझते हैं वी नेवर नो, हमें नहीं पता। तो हमें टीचिंग इज, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। जो भी हमने पढ़ाया, अगर वो 100% टीचर लर्नर समझ जाए फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो हमारा कोई बच्चा फेल ना हो, सारे मेरिट में आए, पर ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए नैक इंसिस्ट करती है कि आप बच्चों को, और अपार्ट फ्रॉम चॉक एंड टॉक मेथड, और किस तरीके से बच्चों की लर्निंग को मैक्सिमाइज करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो उसके लिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग सबसे पहला है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है? इसमें एक्सपीरियंस, जो खुद एक्सपीरियंस, जैसे आपके प्रैक्टिकल्स हैं साइंसेस में, वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। ओके, और एक्सपीरियंस, जो भी कोई रोल प्लेज होते हैं कुछ सब्जेक्ट्स में, तो वो खुद ही बंदा पार्टिसिपेट करता है उसमें, एक्सपीरियंस करता है चीजों को। प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट वर्क, वो भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। फील्ड वर्क है, वो भी एक्सपीरियंस करता है फील्ड में। ओके, तो ये सारी चीजें एक्सपीरियंशियल लर्निंग गिनी जाए। वर्क, फील्ड वर्क, प्रैक्टिकल्स, तीन तो एटलीस्ट है ही है। उसके बाद है पार्टिसिपेटिव लर्निंग। जब आप उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट, लर्निंग एक्टिविटीज में, लर्निंग प्रोसेस में यू आर वन ऑफ द पार्टिसिपेंट, जैसे डिस्कशंस है, उसमें सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज वन ऑफ द एक्टिविटी। फिर पार्टिसिपेटिव होता है इमर्शन। इमर्शन प्रोग्राम्स, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कनाडा में जो लोग जाते हैं यहाँ से, इमिग्रेंट्स, वहाँ पे लैंग्वेज स्किल्स कमजोर है, तो वो क्या करते हैं कि टीचर इस तरह से चॉक एंड टॉक मेथड से नहीं सिखाता। वो सभी ऐसे बच्चों को एक रूम में रखता है बड़े से, और उसमें उसमें 15-16 कैनेडियन स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश भी होते हैं, जो कि बेसिकली टीचर्स होते हैं। तो 15-16 लोग जो टीचर्स हैं, वो 25-30 जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ रियल लाइफ सिचुएशन जैसे रहते हैं, दे कीप टॉकिंग, दे कीप आस्किंग देम क्वेश्चंस। तो जैसे कि वैसे ही है, जैसे यू आर इमर्स, यू नो इन अ सिचुएशन, आप ऐसी सिचुएशन में डाल दिए जाते हैं जो यहाँ, जो आपको इंग्लिश बोलनी ही पड़ती है। दैट इज व्हाट हैपेंस इन रियल लाइफ। अब यहाँ से हमारे बच्चे, हमारे पास 14 साल इंग्लिश पढ़ते हैं, फिर भी वो दे आर डेफिशिएंट इन इंग्लिश, बट व्हेन दे गो अब्रॉड, विद इन 6 months दे पिक अप। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देयर इज कम्युनिकेटिव प्रेशर ऑन देम। यहाँ पे तो प्रेशर सिर्फ एग्जाम्स का होता है, और एग्जाम्स हमारे बड़े सिंप्लीफाइड है, सिंपल है। तो पार्टिसिपेटिव लर्निंग में ये सारी चीजें आएंगी, डिस्कशन आएगा, इसमें इसमें इंटर्नशिप्स आती हैं पार्टिसिपेटिव लर्निंग में, और
प्रॉब्लम सॉल्विंग में जैसे केस मेथड्स, केस स्टडीज आती हैं, या जो भी आप प्रॉब्लम्स देते हैं, जैसे साइंसेज में देते हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो सब प्रॉब्लम सॉल्विंग है। पोज अ प्रॉब्लम, यू गिव सम फैसिलिटेशन, थोड़ी सपोर्ट दें, और ताकि बच्चे उस प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करें। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग इस तरह से मेथडोलॉजी अपनी यूज करनी है। तो ये सारे जो टूल्स हैं, इन ये आप यूज करते हैं इस तरह की जो लर्निंग है उसको करवाने के लिए। वो आपने 500 वर्ड में बताना है, और उसका जो लिंक्स है, उसके एग्जाम्पल्स आपने एक एक एग्जाम्पल। सो दिस फॉर 20 मार्क्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद ये है यूज आईसीटी इनेबल्ड टूल्स फॉर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। अब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये वी आर ऑल फेमिलियर विद दिस टेक्नोलॉजी नाउ एंड द टूल्स। इसमें क्योंकि कोरोना पेंडेमिक के बाद ये सारी चीजें हमें सीखनी पड़ी, और बड़े अच्छे तरीके से हम सीखे भी हैं, एंड वी आर यूजिंग देम। तो इसमें आपकी इंटरैक्टिव पीपीटीज आ जाएंगी, इसमें स्मार्ट क्लासरूम्स जिसमें हम ऑडियो विजुअल बेस टीचिंग कराते हैं वो आ जाएगा। इसमें ऑनलाइन टीचिंग के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो वेबसाइट्स है, अगर आपने खुद की वेबसाइट बनाई है उस पर मटेरियल डाले हैं वो आ जाएगा। उसमें जो ऑनलाइन डिस्कशन फोरम्स हैं वो आ जाएंगी। उसमें हमारे जो गूगल मीट से जो आप क्लासेस लेते हैं, उसके कुछ सैंपल्स आपने वहां पे अपलोड करने हैं। इफ यू वांट टू गेट द क्रेडिट, उनके लिंक्स यहाँ पे डाल दें। सारे आईसीटी इनेबल्ड जो क्लासरूम्स। अब यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे कई सारे टीचर्स ऐसा समझते हैं कि जो चॉक एंड टॉक वो पहले क्लासरूम में किया करते थे, वो वही वो ऑनलाइन करते हैं। दे आर डूइंग द सेम थिंग। तो इससे आईसीटी का हमें पूरा फायदा मिलता नहीं। तो आईसीटी में ये नहीं है कि जो काम हम ट्रेडिशनल क्लासरूम में करते थे वही काम हम इसमें भी कर लें, एंड वी से ओके वी हैव डन आईसीटी इनेबल्ड टीचिंग। नो, दैट्स नॉट द पॉइंट। आपको इसमें और भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। आपको डिस्कशन फोरम्स बनानी पड़ेंगी, आपको उसको थोड़ा लर्नर सेंटर्ड बनाना पड़ेगा। इसमें कई सारे टूल्स आते हैं आईसीटी जिसमें यू कैन डू मेक योर टीचिंग लर्नर सेंटर्ड। कम टू 2.33। अब इसमें मेंटर और मेंटी, ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक कहता है कि भाई करिकुलर एंड को करिकुलर जो एक्टिविटीज हम करते हैं उनसे रिलेटेड कुछ बातें होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ डाउट्स स्टूडेंट्स के मन में होते हैं। तो वो डाउट्स हम ये जो मेंटर मेंटी बैचेस बना के उनको सॉल्व। तो इसमें क्या है कि जितने बच्चे हैं और जितने टीचर्स हैं, वो रफली वही है टीचर स्टूडेंट रेशो। उसी रेशो में ये भी रिफ्लेक्ट होंगे। जैसे 100 टीचर हैं और 3000 बच्चे हैं, तो 1:30 की रेशो आ जाती है। तो रफली मेंटर और मेंटी की रेशो भी इतनी ही रहेगी। अगर आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं टीचर अगर ज्यादा है तो। अब इसमें करना क्या है, ये लेटेस्ट 1 साल का डाटा देना है आपने। 1 साल का है, ये क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स है। क्वांटिटी का मतलब ये है कि इसके ना टेम्पलेट्स दिए हुए अलग से। आप देख रहे हैं लेफ्ट में QNM, क्वांटिटेटिव मैट्रिक। तो इसके टेम्पलेट आपको अलग से मिलते हैं। उसी फॉर्मेट में आपने मेंटर और मेंटी की जो सेशंस हैं और जो उनका रेशो है वो बताना है। ईयर वाइज, ये तो 1 ही साल का है, क्या उसी का बताना है। और इसमें जो सर्कुलर्स वगैरह आपने भेजे, मेंटर मेंटी रिलेशनशिप जो बैचेस बनाए कैसे बनाए, और फिर एक जो अहम चीज है जो सेशंस है, जैसे एक
वीक में आपने एक सेशन कम से कम करना है। तो एवरी वीक यू विल डू वन सेशन, और उस सेशन का रिकॉर्ड रखना है। उसमें क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट। कई हमारे टीचर सिर्फ अटेंडेंस लगा के बस कहते जी हो गया, वरना दैट्स नॉट द पॉइंट। उसके करियर से रिलेटेड एकेडमिकली कुछ वीकनेसेस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो एड्रेस करनी है, सॉल्व करनी है। और अगर उसको कोई एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करनी है। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, उसकी कोई फीस से रिलेटेड, फाइनेंशियल, अगर हम कोई स्कॉलरशिप दिला सकते हैं, किसी तरह की सपोर्ट दिला सकते हैं, वो करना है। लाइब्रेरी में कोई झगड़ा है, कोई उसको तंग कर रहा है, वो सारी चीजें एंड ऑल्सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉम्पिटिशंस, जो हमारे जॉब प्लेसमेंट से रिलेटेड जो उसकी इश्यूज हैं, वो सारी चीजें। तो आपने करना क्या है कि आपने हर एक सेशन का जो जो आपने डिस्कस किया वो अपने रजिस्टर के ऊपर डेट वाइज उसकी अटेंडेंस के साथ रिकॉर्ड करना है, और इस सारे रिकॉर्ड को आपने अपलोड कर देना। ओके, तो दिस इज अबाउट मेंटर इफ यू वांट टू स्कोर। उसके बाद हम आते हैं टीचर प्रोफाइल एंड क्वालिटी। 60 मार्क्स इन टोटल। अगर हम 241 को देखें तो एवरेज परसेंट ऑफ फुल टाइम टीचर्स अगेंस्ट सैंक्शन पोस्ट ड्यूरिंग लास्ट 5 years। अब देखो, सैंक्शन पोस्ट हम लोग समझते हैं कि सैंक्शन पोस्ट जो डीजीएचई की तरफ से सैंक्शन पोस्ट है हमारे, तो अगर आप वो लेना चाहते हैं तो वो ले लीजिए, पर उसमें थोड़ा सा हमें डिसएडवांटेज रहेगा, क्योंकि पोस्ट है जो खाली होती है वही हम भरते हैं। लेकिन कई कॉलेज ऐसे हैं जो खाली होती भी है तब भी नहीं भरते। तो उससे तो सैंक्शन, एक्चुअल सैंक्शन जो थी वो मान लो 70 थी, लेकिन प्रेजेंट जो भरी है, फिल्ड अप है, वो 45 है। तो फिर वो सैंक्शन जो है हम 61 नहीं गिन सकते, वो 45 ही रहेगी। लेकिन आप अगर दूसरे ढंग से लें कि जितना फुल टाइम टीचर्स हैं वो सारे सैंक्शन है, तो यू कैन टेक दैट एज वेल, कि जितने भी हमारे पास 50 परमानेंट टीचर्स हैं एंड 50 जो है वो टेम्परेरी टीचर है। लेकिन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट स्ट्रेंथ वो सारे सैंक्शन है। ओके, तो सैंक्शन का आप इस तरह से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, बिकॉज सी नैक इज दैट वे वेरी फ्लेक्सिबल। वो कहते हैं कि भाई देखो, कि जितने हमारे स्टूडेंट हैं उनको जस्टिफाइबली यू शुड यू शुड बी एबल टू एंगेज। जैसे 1:80 की रेशो लगा के, यानी 1:60 मैक्स। लेकिन हमारे यहाँ 1:80 तो नॉर्मल है। तो 1:80 की रेशो पे आप फुल टाइम टीचर निकाल लीजिए, और वो आपके सैंक्शन पोस्ट ही उतने ही बना लीजिए। ओके, तो ये इस तरह से हो सकता है। अम, ये इसमें डॉक्यूमेंट एक ये है कि लिस्ट ऑफ फैकल्टी मेंबर्स ऑथेंटिकेटेड बाय हेड ऑफ एचई, हायर एजुकेशन, यानी कॉलेज के प्रिंसिपल ही एक वो पूरे जो हमारे टीचर्स हैं, जो फुल टाइम टीचर्स हैं, उनकी लिस्ट दे देंगे यहाँ पर सर्टिफाई करके। उसके बाद देखिए यहाँ पर एवरेज परसेंटेज ऑफ फुल टाइम टीचर्स विद पीएचडी, ओके, ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। अब ये हमारा थोड़ा डिसएडवांटेज है कि जैसे हमारे कई सारे कॉलेजेस में पीएचडी तो है, लेकिन वो अब से 5 साल से पहले की है। तो अब वो 5 साल की ड्यूरेशन में अगर पीएचडी नहीं हुई तो यहाँ पे हम अपने टीचर्स को वो क्रेडिट नहीं दे सकते। तो ये भी एक इशू है जो अनफेयर है। आई थिंक इट 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 कैन बी टेकन अप विद नैक, लेकिन नैक कहती है कि भाई
हम कहते हैं अगर आपके पास 50 टीचर मान लो जिन्होंने 5 साल पहले पीएचडी की है, और उसके बाद जो आपके जो आपने रिक्रूट करते हैं 50 और टेम्परेरी टीचर, आप उनको प्रमोट करिए ताकि वो पीएचडी करें, दे गो फॉर हायर क्वालिफिकेशन एंड यू गेट द क्रेडिट। तो ये थोड़ी सी अभी भी कंट्रोवर्सी है, और कई कॉलेजेस रिप्रेजेंटेशन भेज रहे हैं कि इसको थोड़ा डाइल्यूट किया जाए। जो पुराने हमारे टीचर्स हैं जिन्होंने पीएचडी की हुई है उसको भी क्रेडिट मिलना चाहिए। अम, तो उसके बाद है 243, एवरेज टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ फुल टाइम टीचर्स इन द सेम इंस्टीट्यूशन। अब ये भी एक कंट्रोवर्सी है। हमारे पास फुल टाइम टीचर्स 50 जो परमानेंट है उनका तो हमें बेनिफिट मिलेगा, लेकिन 50-60 जो हम टेम्परेरी टीचर एम्प्लॉय करते हैं कॉलेजेस में, अब उनका वो 5 साल तक अगर टिके तब तो हमें मिलता है फायदा। लेकिन हमारे क्या होता है कि जो भी जिसको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है वो चला जाता है, विच इज फेयर इनफ। तो इफ दे कीप कमिंग एंड गोइंग, तो हमारे पास एक्सपीरियंस टीचर का क्रेडिट हमें मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इसका हल यही है कि व्हेन वी रिक्रूट पीपल, और जिस साल नैक करानी हो, चलो ये भी मैं कह देता हूँ कि जिस साल आपने नैक करवानी है उस सेशन में आप ऐसे टीचर्स रिक्रूट करिए जिनके पास पीएचडी है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, पुराना एक्सपीरियंस ज्यादा है। तब आपको ये 40 नंबर में से अच्छा क्रेडिट मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा मैनेजमेंट को कंसीडर करना पड़ेगा कि ड्यूरिंग द ईयर, आई मीन फॉर द ईयर वेयर यू प्लान टू, जहाँ पे आप प्लान कर रहे हैं कि भाई हमने पीएचडी करानी है, सॉरी नैक करानी है, तो उस दौरान आपने ये काम करना है, पीएचडी वाले टीचर्स एम्प्लॉय करना है, और दूसरा आपने एक्सपीरियंस्ड टीचर्स को एम्प्लॉय करना है। देन we move to 2.5, evaluation process and reform। अब ये एक अहम एरिया है जिसपे we must consider it very carefully। अब 251 में देखिए, mechanism of internal assessment is transparent and robust in terms of frequency and mode। अगर हम जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो प्रिस्क्राइब्ड असाइनमेंट्स हैं, अगर सिर्फ हम वही लेते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी ने तो जी इतने टेस्ट और इतनी असाइनमेंट कहा है और उसके बाद फाइनल एग्जाम होना है सेमेस्टर एंड पे, तो दैट्स इट, उससे हमारा काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। तो इसमें देखिए दो चीजें हैं, एक तो टूल ऑफ टेस्टिंग और एक जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्टिंग, यानी मोड ऑफ टेस्टिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्टिंग। फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ानी होगी और टूल्स को भी ऐड करना होगा। और टूल्स क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे कुछ कॉलेजेस हाउस एग्जामिनेशन करते हैं बिफोर द फाइनल सेमेस्टर एग्जाम, विच इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। उससे बच्चों को अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। एक क्लासरूम में अगर आप लर्निंग असेस करने के लिए क्विज, आपने कितने क्विज कराए, वो भी थोड़ा सा आप डॉक्यूमेंट कर दें उसको कि हमने क्लास में इतने क्विज कराए, टू चेक द लर्निंग इमीडिएटली आफ्टर योर टीचिंग इनपुट्स। तो वो भी एक फायदे है, उसको आप डॉक्यूमेंट करिए। उसके अलावा राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आप उनको एक रजिस्टर लगाइए जिसमें वो सारा क्लास वर्क करें, चाहे वो टेस्ट है, चाहे वो लर्निंग से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, क्लासरूम एक्टिविटीज हैं, वो सारी उसी रजिस्टर में करें, एक ही एट वन प्लेस, ऑल थिंग्स एट वन प्लेस, वेदर इट इज टेस्ट असाइनमेंट और जो भी आपका प्रैक्टिकल वर्क है, एक ही उसमें करेंगे, तो दैट विल बी अ गुड डॉक्यूमेंट। लोग अगर आपके पास चेक करते हैं, क्योंकि जितने 500 वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो 500 वर्ड्स में जिसका आंसर देना है, वो क्वालिटेटिव डाटा है,
तो क्वालिटेटिव डाटा मतलब ये है कि जो पीयर टीम आपके पास आएगी वो लोग चेक करेंगे कि भाई आपके पास जो आपने क्लेम किए हैं 500 वर्ड्स में उसको जस्टिफाई करने के लिए प्रूफ है या नहीं। तो अगर रजिस्टर होंगे आप उनको दिखा सकते हो और वो रजिस्टर आपके एक अच्छे एविडेंस रहेंगे। उसके बाद ये है मैकेनिज्म टू डील विद internal and external examination related grievances in transparent, time bound and efficient manner। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपने एक कमेटी बनानी है। एक तो जो कंट्रोलर ऑफ एग्जाम्स होंगे आपके कॉलेज के और 3-4 सीनियर टीचर्स फैकल्टी वाइज आपने ले लेने हैं, और एक ग्रीवेंस एग्जामिनेशन ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बनेगी आपकी। अब इसमें इसमें क्या करना है, गाइडलाइंस गाइडलाइंस जो है आपने बनानी है कि ये हम ग्रीवेंसेस कैसे लेंगे और उसको कैसे मैकेनिज्म क्या होगा उनको सॉल्व करने का, और बच्चा अपनी ग्रीवेंस कहाँ पे प्रेजेंट कर सकता है। जैसे हम कॉलेजेस में 2-3 जगह पे कंप्लेंट बॉक्सेस लगाएं। ऑफलाइन भी, ये तो ऑफलाइन हो गया, ये ऑनलाइन भी हमें उसको प्रोविजन देना पड़ेगा कि अपने घर बैठे वो कंप्लेन अगर करना चाहता है तो यू कैन कंप्लेन हिज कंप्लेंट ऑन योर वेबसाइट। तो वेबसाइट पे हमें प्रोविजन देनी पड़ेगी, लिंक देना पड़ेगा जहाँ पे कैन लॉग इन एंड एक्सप्रेस हिज एंड लॉज हिज कंप्लेंट। तो ये लिंक आपको बनाने पड़ेंगे और टाइम फ्रेम भी देना पड़ेगा कि कितनी एफिशिएंसी से कितनी जल्दी आप उसकी ग्रीवेंस को रिड्रेस करते हैं। ये सारी चीजें इसमें। देन 2.6 एंड लर्निंग आउटकम्स। अब ये कल मैम ने आपसे शेयर किया होगा कि प्रोग्राम एंड कोर्स आउटकम्स। अब ये क्या होती हैं, ये आपके इस वेबसाइट पे लगेंगी। यानी प्रोग्राम है बीए या बीएससी नॉन मेडिकल या बीएससी मेडिकल। तो इस प्रोग्राम 3 साल इस प्रोग्राम को पढ़ने के बाद बच्चा क्या कर सकता है, क्वालिटीज कौन कौन सी स्किल्स कौन से एट्रीब्यूट्स उसमें आते हैं, किन को वो एक्वायर करता है आफ्टर हैविंग गॉन थ्रू द कंटेंट इन अबाउट 3 years टाइम, वो क्या क्या चीजें सीखता है। तो उसको आप 4 या 5 लाइनों में बुलेट पॉइंट्स में वो बता देना है। आई थिंक 4 to 5 to 6 किस तरह की जॉब्स के लिए वो सूटेबल है, किस तरह की स्किल्स हैं उसमें, ये सब बता देंगे। ओके। और फिर आते हैं हम कोर्स आउटकम्स। ये तो पहले तो प्रोग्राम आउटकम्स थे, अब हम लेते हैं सीओज यानी कोर्स आउटकम्स। कोर्स आउटकम्स में आपने ये बताना है कि जैसे बीएससी कंप्यूटर साइंस में उसने डेटाबेस मैनेजमेंट, ओके, अब ये कोर्स है, ये एक पेपर है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट को पढ़ के बच्चे में कौन कौन सी स्किल्स और क्वालिटीज आती हैं, ये भी 4 या 5 बुलेट पॉइंट्स पर आपने बताना। ये थोड़ा लंबा काम है सब्जेक्ट, इसको प्रोग्राम वाइज तो चलो हो जाएगा कि पर प्रोग्राम हम 4-4 5-5 6-6 बुलेट पॉइंट्स में हम एक्सप्लेन कर दें कि बीए करने के बाद बच्चे में ये क्वालिटी स्किल्स एट्रीब्यूट्स नॉलेज ये पैदा होता है, वो हम बता देंगे। लेकिन हर हर कोर्स मतलब हर प्रोग्राम में 4-4 5-5 कोर्सेज हैं। तो हर कोर्स करने के बाद हर कोर्स का जो है वो भी आपने सीओस यानी कोर्स ऑब्जेक्टिव्स कोर्स आउटकम्स वो भी 4-4 5 बुलेट पॉइंट्स में, ओके, और इसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे कुछ कहीं अच्छी यूनिवर्सिटीज में तो ये दिया होता है, उन्होंने कोर्स कोड भी दिए होते हैं। हमारे पास तो यूनिवर्सिटी ने अभी तक कोर्स कोड्स ही नहीं बनाए हैं। कोर्स कोड मतलब पेपर का कोड होता है ना, कुछ सब्जेक्ट्स में तो बने हुए हैं,
अब इसमें भी इशू आती है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से यूनिफॉर्मली हमारे पास कोर्स कोड्स ही नहीं है। कुछ एरियाज में है और कहीं पे बिल्कुल भी कुछ नहीं। तो ये भी वी हैव टू टेक अप, कॉलेजेस आर टेकिंग अप विद द यूनिवर्सिटी कि इसको कैसे किया जाए। फिर Excuse है me, sir. अटेनमेंट ऑफ प्रोग्राम आउटकम। हाँ जी। Sir, I want to know about this program outcomes. इसमें yesterday we talked about Bloom's taxonomy. Can you please elaborate? ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में मैडम ऐसा है, उसमें ना 3-4 एरियाज हैं कि भाई उसमें इंटेलेक्चुअल लेवल पे उसने क्या सीखा, मतलब नॉलेज डोमेन क्या है। आप रफली ये समझ लीजिए कि उसका नॉलेज डोमेन क्या है, उसमें नॉलेज क्या क्या आई, नॉलेज बेस कितना स्ट्रांग हुआ उसका, और दूसरा उसका स्किल बेस क्या है। यानी आई थिंक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन Yes. नॉलेज एंड स्किल्स, है ना। Yeah. जैसे हम इंग्लिश सीखते हैं, कोई लैंग्वेज सीखते हैं, ये स्किल बेस्ड एक्टिविटी है, क्योंकि इसमें जितनी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें आएगा। लाइक कुकिंग इज अ स्किल, प्राइमरली इज अ स्किल, लिमिट रहता है और स्किल का भी कंपोनेंट रहता है। ड्राइविंग also has a knowledge component and a skill component as well। तो इस तरह से आपको थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा इसका नॉलेज बेस में क्या क्या इसने सीखा, और स्किल जो है इसकी क्या क्या आई, और प्रोग्राम में किन जॉब्स में ये फिट हो सकता है, कहाँ पे इसको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओके। Thank ब्लूम you, sir. टेक्सोनॉमी बहुत बढ़िया इशू है वो, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने आपको मेजरली नहीं है वो बता दी। उसके बाद हम आते हैं जी, यस, अटेनमेंट ऑफ प्रोग्राम आउटकम्स एंड कोर्स आउटकम्स आर इवेल्युएटेड बाय द इंस्टीट्यूशन। ये भी 15 नंबर का सवाल है। अब ये भी देखो, हमने ये कैसे पता लगेगा कि प्रोग्राम आउटकम्स हमारी अचीव हुई या नहीं हुई। नहीं, हमने जब हमने कोर्स लॉन्च किया तो उस कोर्स के बुलेट पॉइंट्स हमने दिए 4-5 कि भाई ये कोर्स करने के बाद इसमें इसकी नॉलेज की और इसके स्किल लेवल्स इतना हो जाए। अब ऐसे, अब मैं ये भी बता दूं आपको कि हमारे नेशनल स्किल फ्रेमवर्क जो है बनाया गया है, अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो उसमें प्रोग्राम वाइज स्किल लेवल्स डिफाइन किए गए। जैसे हमारे ग्रेजुएशन का स्किल लेवल जो है वो 5 के आसपास आता है। तो उसका स्किल लेवल बढ़ा कि नहीं, उसका नॉलेज बेस ठीक हुआ कि नहीं, उसको कौन कौन सी, अब वो उसको इवेलुएट करना है कि कितने बच्चों ने ये सारा अचीव किया है, यानी कितने बच्चों को नौकरी मिली, कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चों ने। अब स्किल्स तो हमारे एग्जाम में टेस्ट होते ही नहीं है, हमारे एग्जाम में तो नॉलेज टेस्ट होती है। तो रिजल्ट्स एंड जॉब प्लेसमेंट, ये दो चीजें हैं जिनके बेसिस पे आप इवेलुएट कर सकते हो whether your POs and PSOs or COs were achieved or not। Okay। उसके बाद हम आते हैं 2.6.3। या तो ये हो गया। फिर उसके बाद 2.6.3, ये तो सिंपल ही है, ये 30 मार्क्स है। बस ये थोड़ा ख्याल रखना, इसमें दो ही चीजें हैं, एक तो 5 साल का आपने डेटा देना है और एक फाइनल ईयर का डेटा। तो फाइनल ईयर में जितने बच्चे आपके अपीयर हुए जिन्होंने एडमिशन ली वो नहीं, जो अपीयर हुए, क्योंकि एडमिशन हो जाते हैं। तो आपने वो बताना है कितने अपीयर हुए और कितने पास हुए, और इसमें 5 साल का डाटा लिखना है। और ये फाइनल ईयर के बच्चे होने चाहिए, BSc फाइनल ईयर, BA फाइनल ईयर, BCom फाइनल ईयर। तो ये डाटा आपने देना है। अब एज पर डाटा टेम्पलेट, ये आप देख रहे हो ना, एज पर डाटा टेम्पलेट, इसका मतलब है इसका टेम्पलेट दिया हुआ है एक्सेल शीट में आपके पास तकरीबन 25 में। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन, जो भी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है वो सारी उसी में भरी जाएगी।
तो ये 5 साल की आपने एवरेज परसेंटेज निकाल ली। अब दिस इज एवरेज परसेंटेज, ये थोड़ा फायदे वाला काम है। अब देखिए, कोरोना में ऑनलाइन एग्जाम हुआ और हमारे सारे बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो गए। उससे पहले जो ऑफलाइन टेस्ट था उसमें बहुत सारों की रीअपीयर्स थी, प्रॉब्लम्स थी। तो इसने इस अगर मान लो पिछले 3 साल की परसेंटेज हमारे पास 50% आ रही थी, इस बार 75% आई है, तो उसकी एवरेज मिलके इट विल बिकम अ हेल्थी एवरेज। तो यहाँ पे इस ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि भाई इस वजह से हमारा रिजल्ट थोड़े अच्छे इस बार दिखेंगे। अब लास्ट में ये बहुत ही अहम चीज है, इसको कहते हैं स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन। अब स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे 60 नंबर है, इसमें कैसे होगा इसका? देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। जैसे पहली बात तो ये है कि एटलीस्ट आपको 50% स्टूडेंट्स का जो डाटा है वो नैक को शेयर करना पड़ेगा। ओके, वो डाटा किस किस तरह से होगा? ये टेम्पलेट का, ये देखिए नीचे नाम है उसका, स्टूडेंट का आईडी नंबर और आधार कार्ड, आईडी नंबर आधार कार्ड, आईडी नंबर रोल नंबर होता है और आधार कार्ड, आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डिग्री प्रोग्राम, ये सारी बातें हैं एज पर डाटा। उसमें टेम्पलेट दिया हुआ है एक्सेल शीट में, उसके अनुसार आपने 50 यानी अगर 3,000 बच्चे हैं तो आप अच्छे बच्चे अपने 1,500 सिलेक्ट कर लीजिए, और उन बच्चों का डाटा आप शेयर कर दीजिए नैक से। अब स्टेप 2 क्या होगा? नैक जो है उनमें से 100 बच्चों को, किसी भी 100 बच्चों को कांटेक्ट करेंगे और उनसे उनको एक वो भेजेंगे। अब जो क्वेश्चनर है वो जो है वो उसमें 21 क्वेश्चन होते हैं और उन 21 क्वेश्चन का रिस्पॉन्स देंगे बच्चे, और उनको ऑनलाइन ही वो सबमिट हो जाएगा, नैक के पास पहुंच जाएगा। उसमें अगर बच्चा पॉजिटिवली एग्री करता है, उसमें 0 to 4 है जो रेटिंग्स है। 20 क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन तो इस तरह के हैं जो जहाँ पे आपने अपनी रेटिंग इंडिकेट करनी है, 0 to 4। अगर वो 0 की तरफ जाता है तो 0 मिलेगा, 1 करता है तो 1 मिलेगा पॉइंट, और 4 करता है तो 4 पॉइंट मिलेगा। एनालाइज वो अपने ढंग से करेंगे। कैसे करेंगे? जो क्वेश्चन है ओपन एंडेड क्वेश्चन है, उसमें 2-3 उन्होंने ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे होंगे। तो इसमें कैसे किया जाए? 1,500 बच्चे पहले सिलेक्ट करो जिनके आपने डिटेल्स शेयर करनी है नैक से। दूसरा, उन 1,500 बच्चों की बैच वाइज, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज जैसे आपको सहूलत हो वैसे ही उनको ट्रेनिंग दें, उनको ट्रेनिंग दें, उनका ट्रस्ट, उनका कॉन्फिडेंस जीते, उनको फैसिलिटीज दें, उनको उनके लिए वी हैव टू, हमें उनको खुश रखना पड़ेगा ताकि वो अच्छी फीडबैक दें। तो आई थिंक दैट कैन बी डन, बट इट्स अ हार्ड वर्क और अच्छी फीडबैक बहुत जरूरी है। अगर आपका देखो ये जब जब देखिए, पहला स्टेप तो है हमारा, शुरुआत हम कैसे करते हैं नैक की, IIQA मैडम ने कल बताया आपको। सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, वो एक्सेप्ट होने के बाद आप जो है आधार का डाटा वगैरह तैयार करना शुरू करते हैं। तो जो क्वांटिटेटिव मैट्रिसेस है, यानी क्वांटिटेटिव जो भी 70% जो आपने क्वांटिटेटिव डाटा सप्लाई करना है नेट को, वो अगले 3 महीने के अंदर तैयार करके IAQ की एक्सेप्टेंस के बाद विद इन 3 मंथ्स आपको वो भेजना होता है। तो वो जब भेजेंगे उसके साथ साथ ही आपको, जब वो भेजेंगे उसके साथ ये स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे वाला भी भेजेंगे। तो स्टूडेंट शेयर करेंगे नैक से, तो वो नैक जो है 10 दिन के अंदर अंदर बच्चों से फीडबैक लेती है। अगर आपकी फीडबैक नेगेटिव है
तो आपका आगे की प्रोसेस नहीं होगी, पीयर कमेटी आपके पास नहीं आएगी। ओके, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि ये जो आपका जो डाटा वैलिडेशन है, यानी 70% जो क्वांटिटेटिव डाटा है और आपका स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे, ये दोनों चीजें सही होनी चाहिए। ओके, तो इसमें क्वेश्चनेयर्स वगैरह हैं। क्वेश्चनेयर अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, या आप खुद देख लेना, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट की थी मैम ने कि 12:45 पे आपको फंक्शन है, तो आई थिंक वी कैन क्लोज हियर। क्वेश्चंस आप उसमें देख लेना। और ओके, सो दैट्स इट। सर दिखा दीजिए एक बार अब क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन पूछने। हाँ जी, अपने हाँ, क्वेश्चंस भी दिखा दीजिए SSR के। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। हाँ जी, यस यस यस, ये है मैडम, देखो क्वेश्चंस, ये सेटिस्फेक्शन सर्वे है। पहले उन्होंने कुछ बताया हुआ है कि किस तरह से आंसर करने हैं बच्चों को। अब ये क्राइटेरिया यहाँ से शुरू हो जाता है, हाउ मच ऑफ द सिलेबस वाज कवर्ड इन द क्लास। ओके, तो ये अगर कहता है 85 से 100 तो 4 नंबर मिलते हैं, नंबर तो नहीं, पॉइंट्स मिलते हैं। 70 to 80% उसको 3 पॉइंट मिलते हैं, इस तरह से। ओके, बिलो 30% कहता है तो 0 पॉइंट। फिर दूसरा क्वेश्चन है, हाउ वेल डिड द टीचर प्रिपेयर फॉर द क्लासेस। वो थॉरली कहता है, सेटिस्फैक्टोरली कहता है, पुअरली कहता है, तो अकॉर्डिंगली आपको पॉइंट्स मिलते जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ वेल वर द टीचर्स एबल टू कम्युनिकेट, ऑलवेज इफेक्टिव। ओके, तो जहां पे भी बच्चा क्लिक करेगा, ये सारा ऑनलाइन होगा, तो अकॉर्डिंगली आपको द टीचर्स अप्रोच टू टीचिंग कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब एज एक्सीलेंट, वेरी गुड। ये रेटिंग है टीचर की कि टीचर को कहाँ पे वो रखता है। फेयरनेस ऑफ इंटरनल इवेल्युएशन प्रोसेस बाय टीचर, कितने फेयर है। अब फेयरनेस को हम थोड़ा इसको फिक्स करने के लिए कि इसको हम नोटिस बोर्ड्स, और हम जो है ना हमारा जो जो जिस बेसिस पे हम इंटरनल इवेल्युएशन तैयार करते हैं, वो सारा रिकॉर्ड हमारा इंटैक्ट होना चाहिए। हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी होनी चाहिए, असाइनमेंट्स होनी चाहिए, उसके स्कोर होने चाहिए जो हाउस टेस्ट लिया। और इसमें एक असेसमेंट में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उसको हम कहते हैं ऑनलाइन पोर्टफोलियो, ऑनलाइन असेसमेंट पोर्टफोलियो। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ऑनलाइन कई सारी फ्री में हमें प्लेटफॉर्म मिलते हैं। आप थोड़ा गूगल पे सर्च करेंगे तो उसमें बच्चा अपने ईयर पूरे सेमेस्टर की पोर्टफोलियो बना सकता है, कि पहले जैसे जुलाई में सेशन, उसमें उसका ये स्कोर आया, उसमें नीचे वो कमेंट भी लिख सकता है, इस वजह से ये स्कोर आया। फिर अगस्त में उसने टेस्ट वेस्ट दिए, असाइनमेंट दिए, तो उसका जो भी स्कोर आया, टीचर भी कमेंट भी अपने डाल सकते हैं वहां पे, या टीचर खुद ही हर एक बच्चे की पोर्टफोलियो बना सकता है, या टीचर को एक्सेस मिलके वो अपने कमेंट भी डाल सकता है। तो ये पूरा रिकॉर्ड जो है 6 महीने का, उसका जो जो असेसमेंट की एक्टिविटी हुई, वो सारी की सारी उस पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट हुई। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, और ऑनलाइन भी है एंड इजीली वो करना चाहिए। तो ये देखिए, ये सारे क्वेश्चंस हैं। द इंस्टीट्यूट टेक्स एक्टिव इंटरेस्ट इन प्रमोटिंग इंटर्नशिप, स्टूडेंट एक्सचेंज, फील्ड विजिट्स, अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स। अगर आप ये करेंगे तो आपको यहाँ भी नंबर मिलेंगे। द टीचिंग एंड मेंटरिंग प्रोसेस ऑफ योर इंस्टीट्यूट, ये मेंटरिंग के ऊपर है, फैसिलिटेट्स यू इन कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल ग्रोथ। अब देखिए ये क्या है कि कॉग्निटिव तो होता है इंटेलेक्चुअल, एकेडमिक से रिलेटेड, सोशल होता है कि सोशल एकाना बच्चों को, और तीसरा है इमोशनल, इमोशनल ग्रोथ, कि कोई किसी की कोई डिप्रेशन में है, कोई कोई प्रॉब्लम है इमोशनल, तो उसको भी सपोर्ट कॉलेज की तरफ से दी जाती है मेंटरिंग सेशन में। फिर है इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड मल्टीपल अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो।
मल्टीपल अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो, इसका मतलब ये है, देखो कि कई लोग तो सुन के लर्न करते हैं, यू नो, दे लर्न बेस्ट व्हेन दे लिसन। कई लोग जो है, दे लर्न बेस्ट व्हेन दे सी, व्हेन दे डू थिंग्स देमसेल्व्स। तो अगर हम एक ही उनको चैनल प्रोवाइड करते हैं सुनने का, तो दैट इज नॉट गुड इनफ। तो हमें उनको सुनाना भी है, चीजें दिखाना भी है, अपॉर्चुनिटीज भी देनी है वेयर दे कैन ग्रो एंड लर्न बाय डूइंग थिंग्स देमसेल्व्स। जैसे प्रैक्टिकल्स आप करवाते हैं, बाकी फील्ड ट्रिप्स हैं, प्रोजेक्ट वर्क्स है, ये सारी चीजें आएंगी, इंटर्नशिप्स हैं, ये सारी चीजें उसमें आएंगी। Teachers inform you about your expected competencies, course outcomes and ये हमें सिखाना पड़ेगा, ये उनके उनको नहीं पता इस बारे में। तो हमें, जब हम सेशन करेंगे बच्चों के साथ, ट्रेनिंग सेशन, उनमें ये सारी टर्म्स के बारे में हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। योर मेंटरशिप पे बहुत बहुत अच्छे सवाल है। योर मेंटर डज अ नेसेसरी फॉलो अप एंड विद एन असाइन टास्क टू यू। तो फॉलो अप भी करनी है। किसी बच्चे ने कोई प्रॉब्लम बताई मेंटरिंग सेशन में, और वो हमने उस वक्त तो डिस्कस की, लेकिन उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं, उसकी फॉलोअप और एक्शन टेकन जो है, वो भी हमें अपने रजिस्टर्स में लिखना जरूरी है। द टीचर्स इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट थ्रू एग्जांपल्स एंड एप्लीकेशन। ये तो हम सारे करते ही हैं, एग्जांपल देते हैं, इलस्ट्रेशन भी देते हैं। द टीचर्स आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड encourage you with providing right level of challenges। अब इसमें होता है पिचिंग योर टीचिंग एट द राइट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, स्टूडेंट कॉम्पिटेंस। कई बच्चे कमजोर होते हैं, कई थोड़े होशियार होते हैं। तो ऐसा ना हो कि हम सिर्फ कमजोरों को देखते रहे, होशियारों को भूलें। तो मिक्स्ड एबिलिटी क्लासेस में यू हैव टू पिच योर टीचिंग एट द राइट लेवल। सो दैट मीन्स यू हैव टू कीप वेयरिंग योर पिच। जो वीक बच्चे हैं उनको भी देखना है, जो ब्राइट बच्चे हैं उनको भी देखना है। Then teachers are able to identify your weaknesses and help you overcome them। अब ये हम डायग्नोस्टिक टेस्ट अगर हम करते हैं, उसमें हमारा ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। Institution makes effort to engage student in monitoring, review and continuous quality improvement of the teaching learning process। इसमें बच्चों की इनपुट्स लेनी जरूरी है टीचिंग लर्निंग पे। क्वेश्चनेयर बनाए जिसमें बच्चों से ये इनपुट्स लें कि बच्चे किस तरह की टीचिंग पसंद करते हैं। तो उसमें जैसे हमारे टूल्स हैं, उनके लिस्ट बना के उनसे बच्चों से उनसे रेटिंग ले ली जाए, एक क्वेश्चनेयर बना के उसमें जो टीचिंग एंड लर्निंग के टूल्स हैं वो लिस्ट करके ले ली जाए, तो यहाँ पे ठीक रहेगा। Institute the teachers use student-centric methods such as experiential learning, participative learning। ये वही चीज है, ये पिछले क्वेश्चन 15वें क्वेश्चन के साथ ही ये भी आ जाएगा। एक क्वेश्चनेयर बनाना पड़ेगा बच्चों के लिए, जिसमें हम बच्चों की फीडबैक लेंगे टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस पे भी, वो कहाँ तक इससे खुश है, या कुछ वो इसमें एडिशन या डिलीशन चाहते हैं, तो वो एक हमारे पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। टीचर्स इंकरेज यू टू पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। ये कितने हमारे बहुत कम बच्चे करते हैं, इसमें ज्यादा से बच्चों को इन्वॉल्व करना है। आगे जो क्राइटेरिया आएंगे उसमें पता लगेगा कि हमें कम से कम 50% बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना है। Then efforts are made by institute teachers to inculcate soft skills, life skills। ये भी अगले उसमें आएगा। तो क्या हम वो करते हैं? अब हमारे बेचारे ये जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, ये तो कभी इंग्लिश पढ़ते नहीं, अनफॉर्चुनेटली इनको व्हेन दे गो टू compete इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, दे आर अ फेलियर। अब यूनिवर्सिटी ने पता नहीं क्या सोच के इंग्लिश का सब्जेक्ट ही बंद कर दिया है यहाँ पे। तो ये एक चैलेंज है यहाँ पे। क्या कॉलेज की तरफ से ऐसे बच्चों को कुछ सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, इंग्लिश की ट्रेनिंग, लाइफ स्किल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े? तो ये भी कॉलेज को कुछ प्रोग्राम्स
तैयार करने पड़ेंगे, ये आपको डिटेल में मिलेगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ टीचर्स यूज आईसीटी? अब कितने बच्चे, अब आजकल तो सभी ने करना शुरू कर दिया है, इससे क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल करना पड़ेगा। फिर है 20 द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन इंस्टीट्यूट वेरी गुड। तो आप एग्री करते हो? कहाँ ये रेटिंग करेगा। फिर वो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ये इसके मार्क्स थोड़े ज्यादा हैं। गिव 3 ऑब्जर्वेशन टू इम्प्रूव द ओवरऑल टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस इन योर इंस्टीट्यूट। बच्चों को थोड़ा आइडिया कम उत्तर करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या क्या लिखा जाए। तो ये है मैम स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे, जो जो थैंक यू उनका सर, क्वेश्चन थैंक है। यू। बहुत इम्पोर्टेंट था, तो बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि जी हम जी अपना क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू यही बना सकते हैं और बच्चों से फीडबैक ले सकते हैं, हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे इससे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू जी। तो पार्टिसिपेंट्स, एनी क्वेश्चन, कहीं पे कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत? Sir, really thank you to deliver a talk on a technical topic with such a ease. Especially मैंने इसके पहले भी आपका एक वेबिनार अटेंड किया था, इट वाज अबाउट ऑनलाइन टीचिंग। उसमें भी आपने बहुत इजी तरीके से हमें बहुत नए नए टूल्स बताए थे कि कैसे गूगल साइट्स का यूज कर सकते हैं। इन द सेम वे सर, यू आल्सो टच दिस टॉपिक, दिस टेक्निकल टॉपिक इन अ वेरी इजी मैनर। सर थैंक यू। मेरे ख्याल से नीना मैम ने जो हमसे आपसे अभी वो क्वेश्चन आयर पूछा था, उससे भी हमारे बहुत सारे चीज़ों के सोल्यूशंस निकल के आए हैं। थैंक यू वेरी मच सर। एनी अदर पार्टिसिपेंट्स, अगर आप कुछ और पूछना चाहते हो तो वी कैन आस्क। यस। Hello, good afternoon. Good हेलो। afternoon, ma'am. हेलो, हाँ जी। हाँ जी आई वांट टू आस्क सर, जैसे आपने बताया कि हमें कुछ चीजें लिंक भेजनी है और उस पे वेबसाइट पे अपलोड करनी है। कल भी हाँ जी। मैम ने ऐसे ही बोला था, जैसे क्वेश्चन बैंक वगैरह उसे आप वेबसाइट पे अपलोड कर दें। तो क्या वेबसाइट इतनी ये सारी चीजें ले लेगा, मतलब इतना हाँ हैवी जी हो जाएगा कि वो ओपन नहीं हो पाएगा या इस तरीके की प्रॉब्लम आए उसमें? तो मैडम, वो अब ऐसा है, इसमें वेबसाइट थोड़ा ना हमें री उसमें कई सारे टूल्स आते हैं, आप इंफॉर्मेशन को कंप्रेस करके डाल सकते हैं। तो थोड़े कॉलेजेस को पैसे खर्चने पड़ेंगे और अच्छी वेबसाइट डिजाइन करानी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, क्योंकि आगे आगे वेबसाइट विल बी द की फैक्टर। जितनी भी आपकी NIRF जो है, जो रैंकिंग है, या AISHE है, जितनी भी एजेंसीज हैं, दे विल ऑलवेज रेफर टू योर वेबसाइट। अगर आपकी वेबसाइट ढीली है तो आपके आने वाले स्कोर। हेलो, डिड यू गेट हेलो मी? हेलो। हेलो। जी हाँ सर, जी, आपकी मेरी आवाज आ आवाज रही आई है। आप? जी सर, आपकी अच्छा आवाज अच्छा आ रही है। अच्छा, करणदीप राइट मैम, राइट। आपकी भी आ रही है। ओके हाँ। ओके। तो यस, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हमें वेबसाइट को अपने जो है बहुत एडवांस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। हाँ, वेबसाइट में जो लोग टेक्निकल हैं वो उनको पता है कि एक तो हमें अच्छे सर्वर हायर करने पड़ेंगे जहाँ पे हमने वेबसाइट को होस्ट करना है, और दूसरा उसका डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होना चाहिए ताकि आराम से उसको नेविगेट किया जा सके। तो वेबसाइट इज अ वेरी क्रूशल फैक्टर इन द फ्यूचर। आई वुड रिक्वेस्ट authorities of all colleges to kindness, क्योंकि ये आगे बहुत ही अहम होने वाला है हम सब के लिए।
एक्सक्यूज मी सर, क्या हम एक काम कर सकते जी हैं कि जैसे डिपार्टमेंटल मेल आईडीज हैं हमारी, हम जो भी काम डिपार्टमेंट का कर रहे हैं उस मेल पे डाल दें, स्टूडेंट्स के भी, टेस्ट रिपोर्ट भी, एवरीथिंग, और हम उसका लिंक अपनी वेबसाइट पे डाल दें तो वो चलेगा? देखिए, एक तो हमने जो जीमेल में अपनी ईमेल आईडी बनाई हुई है ना, हाँ जी। उससे उससे हटना पड़ेगा। तो वेंडर जो है खुद ही आपको अपने कॉलेज की स्पेसिफिक जीएनकेसी, सॉरी जीएनजी जो भी है, उस पे आपको वो ईमेल आईडी बना के देंगे। ये फॉरेन में तो, फॉरेन कंट्रीज में तो ठीक है, वहाँ पे होता है, हमारे यहाँ पे नहीं हो रहा है। हम सारे टीचर्स अपनी जीमेल वगैरह पे आईडी बनाते हैं, लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वो वेंडर आपको, हाँ वेंडर आपको पूरा बताएगा, और लिंक कैसे वहाँ पे आपने मतलब चीज को अपलोड, वो सारा देखिए, वो आपको प्रॉपर ढंग से वेबसाइट बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारा डाटा वेबसाइट पे ही दिखेगा। और वेबसाइट जब तक हमारी क्रैश अगर हो जाती है तब भी गलत है। तो वेबसाइट जो है वो अच्छे फास्ट सर्वर के ऊपर हो, और क्रैश प्रूफ हो, और उसमें सारी जो फंक्शनैलिटीज हैं सारी की सारी अवेलेबल हो। तो वेबसाइट इज ए सीरियस थिंग, इस पे काम करना पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है जी। Thank you, sir. Okay. Thank you sir, And thank you. yes, and as I said in the beginning, कि this is a platform for interaction, free and fair interaction, where we can learn from each other. हम सारे colleagues हैं, and highly qualified people. और इसमें बस थोड़ा पढ़ने की बात है। The more time you spend with the doc, उतनी ही clarity आपको आती जाएगी। बट स्टिल वी आर नाउ पार्ट ऑफ द फैमिली। आप हमारा एमओयू है आपके साथ, एसडी कॉलेज वाले भी दे आर ए बिग सपोर्ट। तो तीनों कॉलेजेस मिलके आई थिंक वी कैन डू वेल टुगेदर फॉर दिस नेक प्रिपरेशन। तो प्लीज फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस इफ यू हैव स्टिल हैव सम क्वेरीज। अभी तो कई सारे दिन हैं, तो वी विल कीप इंटरेक्टिंग, और उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आप पूछिए, इन्वॉल्वमेंट रखिए, ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी आती जाए। ऑलराइट, थैंक यू सो हाँ मच। जी, एक क्वेश्चन है, हाँ हाँ जी। जैसे हमारा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है तो हमारे पे एडमिशन के रूल्स लागू नहीं होते क्या, जो नहीं नहीं, यूनिवर्सिटी, होते हैं, होते हैं, मतलब कितने ऐसा है परसेंट? देखिए, उसमें हाँ, उसमें स्ट्रिक्टली दे डोंट बॉदर। उसमें मैंने जैसे बताया था आपको कि उसमें एक तो अपना माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन स्टेटस वाला सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा वेबसाइट पे। दूसरा, उसकी कुछ गाइडलाइंस है, जो भी डॉक्यूमेंट है ना उसमें गाइडलाइंस है, अभी कम से कम इतने परसेंट बच्चे आपके उसमें होने चाहिए। तो उन बच्चों की डिटेल्स भी आपको वहां पे डालनी पड़ेगी। इसके अलावा एसटी तो हमारे होते ही नहीं है, तो ओबीसी और बाकी जो अवेलेबल हैं वो डाल दीजिए। अब हमारे पास क्या होगा कि रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी कि जैसे इतने परसेंट ओबीसी होने चाहिए, इतने परसेंट एससी होने चाहिए। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पे नहीं है। लेकिन आप जो डाटा टेम्पलेट है उसमें भर सकते हो इंफॉर्मेशन, वॉट एवर नंबर ऑफ एससी कैंडिडेट्स यू हैव, फिल इट देयर, एंड वॉट एवर नंबर ऑफ ओबीसी एंड बैकवर्ड क्लास, सारे सारे आप उसमें डाल सकते हो। तो उसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। कुछ पॉलिसीज भी हैं जो आप लोगों ने बनाई हैं, एडमिशन पॉलिसीज, एग्जामिनेशन पॉलिसीज, और हाँ उनकी जी, हाँ, वेबसाइट? पॉलिसीज देखिए, अब अगले जो क्राइटेरिया में जाएंगे ना, तो आपको 15-20 कॉलेज में कमिटीज रखनी होंगी, बनानी होंगी, आपकी भी बनी होंगी। लेकिन अब देखिए, मेन जो चीज है वो है डॉक्यूमेंटेशन। हम लोग मिलते हैं, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड हमारे पास एक कागज पे होता है, तो दैट वोंट डू। वो आपको ऑनलाइन भी लाना पड़ेगा, जो जो मीटिंग की प्रोसीडिंग्स हैं, और उसका कोई रजिस्टर वगैरह लगा लीजिए, वो बेटर है।
तो कमिटीज आपको बनानी पड़ेंगी, बहुत सारी कमिटी बनानी है ना। जब पूरा ये हो जाएगा, when you ठीक है। हाँ जी। when you get exposure to all the criteria, साथ के साथ आ जाएंगे ना, तो आपको वही चीजें नजर आएंगी कि नैक नैक दैट इज वेरी फ्लेक्सिबल। उनको ये नहीं है कि भाई यही चीज होनी चाहिए। जैसे प्रोजेक्ट्स की बात मैं कल कर रहा था, तो ऐसा नहीं है कि कोर्स में जो प्रोजेक्ट्स रिक्वायर्ड हैं वही वो लेंगे, जो हम प्रोजेक्ट्स देंगे बच्चों को वो भी कंसिडर हो। लेकिन वो शायद उस वाले में जो पहले क्राइटेरिया में, वहां पे क्रेडिट उनको मिलेगा जो कोर्स में प्रिस्क्राइब है। और ये जो हमारे वाला क्राइटेरिया है नंबर 2, इसमें प्रोजेक्ट वर्क की मैंने बात की आज। अगर आप प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करवाएंगे, टीचिंग करवाएंगे, तो उसका क्रेडिट हमें जरूर मिलेगा। तो ये सारी चीजें घूम फिर के वही आती हैं कि एकेडमिकली हम कैसे करते हैं, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में क्या इन्वॉल्व करते हैं, बच्चों की प्लेसमेंट कहाँ कराते हैं, ट्रेनिंग किस तरह की है, टीचर की जो इम्प्रूवमेंट है वो कैसी है, प्रोसेस कैसी है हमारी, डिसेंट्रलाइज है या हाईली सेंट्रलाइज है, वो सारी चीजें घूम घूम के आएंगी। हमारे कॉलेजेस जो है ना, दे हैवंट इवॉल्व्ड। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हमारे पे कम लागू होती है, क्योंकि विद द टाइम्स वी हैव टू इवॉल्व। टाइम इज चेंजिंग ड्रेस्टिकली, रिक्वायरमेंट्स आर चेंजिंग, तो उस तरह की चेंजेस दिखानी पड़ेंगी। अदरवाइज न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने साफ साफ कह दिया है, अभी मैं मीटिंग्स अटेंड कर रहा हूँ बिकॉज हरियाणा का, तो वहां पे उन्होंने साफ कहा है भी जो लोग चेंज नहीं करेंगे दे विल पेरिश, वो कॉलेजेस खत्म हो जाएंगे एंड यू हैव टू चेंज। तो धीरे धीरे चेंजेस इंट्रोड्यूस करते रहिए। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन, एक कंफ्यूजन था एम्प्लॉयर्स का कि हाँ हम एम्प्लॉयर किसको मानते हैं, जो बच्चा प्लेस होता है जिस कंपनी में जाता है, दैट इज कॉल्ड। हाँ हाँ, वो वो जो करेंगे। स्टेक होल्डर के सर्वे क्राइटेरिया 1 में, तो क्राइटेरिया 1 में जो हमने फीडबैक लेनी है, वो जो एम्प्लॉयर है वो हमारे कॉलेज के एम्प्लॉयर नहीं है, ठीक है। वो हैंगे जहाँ पे बच्चा बच्चा नौकरी प्लेस करने, होता है। नौकरी करने जाता है ना, जहाँ प्लेस होता है वो हाँ employers, जी। उनकी फीडबैक। क्योंकि वो कोर्स के ऊपर है फीडबैक कि भाई जो कोर्स बीकॉम में पढ़ाया गया, अब वो बीकॉम का बच्चा गया हमारा नौकरी करने, तो वो एम्प्लॉयर कहता है यार तेरे को क्या सीखा, तूने तूने तो टाइम वेस्ट किया है, यू डोंट नो एनीथिंग, मुझे तो आता ही कुछ नहीं। फीडबैक है ना एम्प्लॉयर की कि इंडस्ट्री क्या रिक्वायरमेंट है और हमारे यूनिवर्सिटी के सिलेबस में क्या पढ़ाते हैं, उसके बीच में जो गैप आता है तो वो इम्पोर्टेंट है। तो हमें एम्प्लॉयर की जो फीडबैक लेके कि एम्प्लॉयमेंट उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट ये है, और उसको हमें फीडबैक देनी है यूनिवर्सिटी को कि भाई अपने जो बाबा आदम के जमाने के जो कोर्सेज हैं उनको रिफॉर्म करो, उनको ठीक करो। That's हाँ, हम लोग मिलके ये काम कर सकते हैं कि मिलके the purpose. रिप्रेजेंटेशन दे दें चेंजेस हाँ करके। जी, ठीक है, थैंक हाँ यू जी। सर, थैंक यू सो मच, Okay, थैंक okay. All right, जी, thank you so much. Once again, thank you, sir, for your sincere talk. Thank you, sir. Okay, okay. Now we can leave the meeting. All participants are requested to leave the meeting now.